Hello everyone, this is Neha Vijay. Welcome in biochemistry class. Yes, today I am going to discuss with you function of NADPH and pentose and glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency. I have already discussed pathway in the part 1. Yes, start. What is the definition? It is the alternative pathway of glycolysis and TCA cycle for the oxidation of glucose. HMP shunt is anabolic, means it is the synthesis of fatty acid, cholesterol and more functions. Other names was the phosphogluconate pathway, pentose cycle, HMP pathway or shunt, Warburg-Dickenson-Lipman pathway. What is the main function of pentose phosphate pathway? It supplies the cell with NADPH. Most important, what is the NADPH? Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. It convert हेक्सोज into the pentose. ये 6 कार्बन को चेंज करता है 5 कार्बन में जो पेंटोज है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ DNA and RNA. And other component is ATP coenzyme ANADP FAD. Yes, it is enable, means it is capable of complete oxidative degradation of the pentose, converting them into the hexose and triose. When pentose in convert, means it is convert in the hexose and triose and it can enter the glycolytic pathway, means it can enter the glycolysis. That's why its name is alternative pathway of glycolysis and Krebs cycle. What is the role of NADH and NADPH? Yes, NADH we have already discussed in the glycolysis and Krebs cycle. 1 NADH is equal to the 3 ATP. But what is the NADPH? NADPH is oxidized by the electron transport chain to generate ATP. This is the NADH. If we talk about the NADPH, NADPH work as a electron donor. Yes, a hydride donor in the biosynthesis reactions. Recall, if we say totally, it is the oxidation of substrate. The nicotinamide ring of NADP accept, means NADP is accept a hydrogen ion and 2 electron, then it convert into the NADPH, and this is very important in many way. In NADPH pathway requiring the, why we requiring this pathway? Because the synthesis of fatty acid biosynthesis, cholesterol biosynthesis, neurotransmitter biosynthesis and nucleotide biosynthesis, and other work is detoxification is very important. What is the detoxification? Means it is the detoxify of drugs or other जो भी foreign materials है. How it detoxify? It is maintain the reduced glutathione, means it is the reduction of the oxidized glutathione, and cytochrome P450 monooxygenase, it is the enzyme, it help in the also detoxification. Yes, what is the glutathione? Yes, if we talk about the glutathione and what is the form of oxidized and reduced form, so glutathione is a substance made with the amino acids. Yes, which amino acids? Amino acids glycine and cysteine and glutamic acid. It is produced naturally by the liver and involve many functions and processes in the body, including protein synthesis, tissue repair, and many other important work and work as a immune system. Yes, yeah, this is the work of glutathione. What is the oxidize and what is the reduce? Oxidize is the bad. That's why it reduction the oxidize. Oxidize why bad? Because oxidize it is cell are the more resistant to toxicity. यदि ऑक्सीडाइज ग्लूटेथाइन हो जाएगा, रिडक्ट नहीं हो पाया, NADPH सीक्रेट नहीं हुआ तो रिडक्ट नहीं हो पाएगा. अब यदि नहीं हुआ तो क्या करेगा? सेल्स हैं जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट करने लग जाएगी टॉक्सिसिटी को, उससे क्या होगा? लीवर भी डैमेज हो सकता है. दैट्स वाई इट इज़ द मेंटेन इन द रिड्यूस glutathione. Yes, clear? Glutathione, what is glutathione? And it is the reduced form. If it is reduced form, it improves the psoriasis, it improves the insulin resistance in an older individuals. It reduces the symptom of Parkinson disease,
may helpful in the autoimmune disease. Very important work of the glutathione, which reduce glutathione. Also main important work is maintain the RBC integrity. yes डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, रिडक्शन किया, और साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीडेज को डिटॉक्सिफिकेशन हुआ. मोस्ट ऑफ द ड्रग्स अदर लीवर माइक्रोसोमल P450 एंजाइम विद द हेल्प ऑफ NADPH. What is the importance of NADPH? Many important work we have discussed and we are going to discuss. Yes, first one is it is the reductive synthesis of fatty acid. Fatty acid को synthesis करता है, steroids को synthesis करता है, amino acids को पता है, और ये करता है आपके reduce glutathione को. देखिए वापस आके reduce glutathione, तो प्रोडक्शन ऑफ reduced glutathione in erythrocytes and other cells. क्या है ये fatty acids? Fatty acids क्या है? It is the building block of the fat in our bodies. When the food we eat, during digestion, the body break down fat into the fatty acid which can absorb in the blood. हम यदि jointly बात करें तो it is the group of molecule of triglycerides. Yes, and second one is production of ribose residue, because it is also work as the NADPH. If NADPH is work properly, then secrete glucose 6 phosphate से पेंटोज 5 phosphate बनेगा. इस वजह से ये जो न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस कंप्लीट होगा. इंपॉर्टेंस ऑफ NADPH क्या है? फॉर H2O2 एलिमिनेशन ऑफ आवर बॉडी. H2O2 को हमारी बॉडी से ये एलिमिनेट करता है. अब आपसे एक क्वेश्चन, व्हाट डज H2O2 डू टू द बॉडी? नॉर्मली तो इट वर्क एज ए एंटीसेप्टिक, यदि हम एक्सटर्नली ले रहे हैं, अपनी एज ए ट्रीटमेंट में ले रहे हैं. पर नॉर्मली एज ए बॉडी की बात करें तो इट इज़ द एक्चुअली फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिज्म. H2O2 कहाँ से बनता है? जब ये मेटाबॉलिज्म होता है तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म. कैन एंटर इन द मैनी बॉडी सिस्टम, मतलब इट डू द सम नेसेसरी थिंग्स. क्या करेगा? इट कैन ब्रेक द apart hydroxy radicals and attack the important biochemicals like protein and DNA. इन सब में अटैक कर देगा, और बॉडी में जब प्रोटीन नहीं बनेगा, DNA नहीं बनेगा, तो बहुत सारी डेफिशिएंसी हो जाएंगी. एंड अदर वर्क इज वर्क एज द एनर्जी मॉलिक्यूल. हाउ मच का परसेंटेज मेटाबोलाइज बाय द पेंटोज फॉस्फेट पाथ? इट इज वेरीज. यस, डिफरेंट टिश्यूज में वेरीज होगी. हाउ? Liver 5 to 10% glucose metabolized by the pentose phosphate. If we talk about the adipose tissue, excess amount में adipose tissue, yeah, 30 to 50%. 30 to 50% glucose is metabolized by the pentose phosphate pathway. In erythrocyte, 10%. Thyroid gland and kidney and brain, 3 to 5%. Muscles actively extremely low. Yes, very low. Muscles में very low होता है. These are tissue are highly active in the HMP shunt pathway, and HMP shunt pathway is going on, then we have get the NADPH and pentose, and these are the very important in biosynthesis of different metabolism. Location of pathway, it is located in the cytosol. Tissue such as liver, adipose tissue, adrenal gland, erythrocyte, testis हम पढ़ चुके कि how much percentage in this previous slide. And if we talk about very short, then liver, adipose tissue, adrenal gland, erythrocytes, testes, lactating mammary glands, highly active in the HMP shunt. Most of these tissue are involved in the biosynthesis of fatty acid and steroids. जो these tissues है, liver, adipose tissue, adrenal gland, etc. are involved in the biosynthesis of fatty acid और steroids के लिए. steroids क्या है? are the hormones है, they are reduce the inflammation in our body. Steroids are कैसे काम करेंगे? It act as the hormone to reduce inflammation. इनको हम corticosteroids भी बोल सकते हैं. It called as corticosteroids are different to anabolic steroids used to bodybuilders and athletes. Yes, these are the importance of NADPH and pentose. What is the biological significance? We have already discussed the normal functions. अब यदि बात करें हम biological significance की, importance of NADPH की, तो NADPH is the synthesis of certain amino acids में involving the enzyme glutamate dehydrogenase. Yes, when NADPH
सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज एमिनो एसिड्स क्योंकि तो एक एंजाइम वर्क करता है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस, तो सिंथेसिस करता है किसका, एमिनो एसिड्स का, ठीक है। इट इज़ यूज इन द बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड स्टीरॉयड। अब फैटी एसिड और स्टीरॉयड्स को भी बनाते हैं, एमिनो एसिड्स भी बनाया, फैटी एसिड और स्टीरॉयड्स की हम बात कर चुके हैं, इन दोनों को भी सिंथेसिस करने में भी NADPH वर्क प्ले करता है। द NADPH कीप द ग्लूटेथैन, देखो ग्लूटेथैन की बात हो गई, RBC इन द रिड्यूस स्टेट टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ RBC मेम्ब्रेन। The NADPH keep the glutathione RBC in the reduced state to preserve the integrity of the RBC membrane. Yes, integrity of the RBC membrane क्या करेगा, RBC membrane है जो क्या करती है आपके जो ट्रांजेक्शन ऑफ द सॉल्ट एंड O2 एक्सेट्रा मेम्ब्रेन करती है, तो इसकी बिल्कुल स्मूथनेस बनाए रखेगा। द NADPH कीप द फेरस आयन, यस फेरस आयन क्या है, नॉर्मली जो Fe+2 आयन है नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, यदि इट कन्वर्ट इन द जो यदि Fe+3 में चेंज हो जाएगा, यदि फेरस में तो ओके, यदि फेरिक में चेंज हो गया तो मेथेमोग्लोबिन हो गया, और यदि मेथेमोग्लोबिन बन गया तो ये क्या करेगा, बाइंड नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करेगा, तो हमारी टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, देन कैन ऑल्सो अवर बॉडी पार्ट इज पैरालाइज। दैट्स वाई NADPH मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज फेरस आयन को रिड्यूस स्टेट में रखता है, ओके, इट नॉट कन्वर्ट इन द Fe+3। द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, क्या चीज़ है ये फैगोसाइटोसिस, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो रिक्वायर NADPH। फैगोसाइटोसिस क्या है, एनगल्फमेंट मतलब निगलना, एनगल्फमेंट ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म carried out by the WBC. This process is required the supply of NADPH. It is required for the detoxification of drugs. हम बात कर चुके हैं डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, इसके अंदर जो टॉक्सिसिटी को हम चेंज कर दें। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स एंड अदर्स लीवर माइक्रोसोमल P450 एंजाइम इट डिटॉक्सिफाई विद द हेल्प ऑफ NADPH. Most of the drugs and foreign substance are detoxified with the liver microsomal P450 enzyme with the help of the NAD. Lens of the eye, last function of the NADPH, lens of the eye. जो NADPH है वो एकदम लेंस को ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कराता है। यस मीन्स वी हैव टू वॉच क्लियर, सीन क्लीन द क्लियर वे। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ NADPH इज सीन इन द लेंस ऑफ आई, ओके। NADPH क्यों रिक्वायर हुआ, क्योंकि ये प्रिजर्व करता है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लेंस को, जो लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको बिल्कुल मेंटेन करके रखेगा, प्रिजर्व करके रखेगा NADPH। दीज आर द NADPH फंक्शन। बट अब हम डिस्कस करेंगे पेंटोज की इंपॉर्टेंस। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पेंटोज? पेंटोज एंड इट्स डेरिवेटिव आर यूज्ड टू सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड and many nucleotides. What's the many nucleotides? ATP, NAD or CoA. Yes, coenzyme A. When an organism growing on pentose sugar, जब pentose sugar grow होता है तो it is used to provide the carbohydrate. मतलब in previous presentation we have discussed the interconversion of 1 3 4 5 6 7 carbon in the non-oxidative pathway. Then how they prepare triose, tetrose, pentose, hexose, both are the synthesis by the pentose. Yes, abnormalities very important, एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है क्या, G6PD डेफिशिएंसी। G6PD क्या चीज़ है ये G6PD? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, ओके। क्या चीज़ है ये डेफिशिएंसी? तो सबसे पहले म्यूटेशन हमने जो पढ़ा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी में क्या होगा, म्यूटेशन प्रेजेंट इन द सम पॉपुलेशन कोज। म्यूटेशन क्या होगा, कुछ पॉपुलेशन में प्रेजेंट होगा जिस वजह से ये डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, और इम्पेयरमेंट हो जाएगा NADPH प्रोडक्शन का। ये म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन इज द चेंज दैट अकर इन द DNA सीक्वेंस, मतलब ACGT होता है, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन, इनके सीक्वेंस में DNA सीक्वेंस में ही चेंज हो जाता है, either due to any mistake or DNA copy mistake or the environmental result of the environmental factors such as UV light and cigarette smoke,
Yes, cigarette smoke, we already say that cigarette is injurious to health. Then if high amount of cigarette smoke, then DNA sequence also change, means mutation अकर होगा तो डेफिशिएंसी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीएनए क्यों आएगी, क्योंकि आपका डीएनए सीक्वेंस में प्रॉब्लम होगा। यदि ये डेफिशिएंसी है तो एनएडीपीएच प्रॉपर नहीं बन पाएगा तो ये डेफिशिएंसी होगी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगी। नेक्स्ट वन इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ H2O2। हम बात कर चुके हैं H2O2 क्या है। H2O2 बताया था कि ये प्रोडक्ट है मेटाबॉलिज्म का, जो फ्री कर देता है रेडिकल्स को, हाइड्रोक्सी रेडिकल्स को, जो इम्पॉर्टेंट बायोसिंथेसिस लाइक प्रोटीन और डीएनए में अटैक करते हैं। तो अब ये जो नेस्टी थिंग्स करता है H2O2, उसको कम करना, हटाना या इनिबिट करना है, तो NADPH के थ्रू ही ये वर्क होता है। एंड सेलुलर डैमेज रिजल्ट, H2O2 का डिटॉक्सिफिकेशन होना, सेलुलर डैमेज हो जाना, वो इनिबिट हो जाएगी, वो डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाएगा H2O2। ये सब किस वजह से, एंड लिपिड परऑक्सीडेशन लीड टू इरेथ्रोसाइट मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन। यस, अब मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन हो जाएगी और हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। यस, लिपिड परऑक्सीडेशन की बात करें पहले, तो ये लिपिड परऑक्सीडेशन है क्या। लिपिड परऑक्सीडेशन इज द चेन ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ लिपिड्स। और क्या चीज़ है, ये एक प्रोसेस है, इसके अंदर फ्री रेडिकल जो भी बात की थी वो हो जाते हैं। इस वजह से लिपिड की जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज होने लग जाती है। यस, अब हीमोलाइटिक एनीमिया क्या है, इट इज़ अ डिसऑर्डर है जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉय फास्टर देन दे कैन बी मेड, बनने से ज़्यादा ही डिस्ट्रॉय होने लगती है। दिस इज द हीमोलाइटिक एनीमिया, और हम इसको हीमोलाइसिस भी बोल सकते हैं। यस, आरबीसी का काम क्या है, कैरी करना, ऑक्सीजन कैरी करना, और यदि वो लोअर होगा तो रेड ब्लड सेल्स मिल नहीं पाएगी तो क्या हो जाएगा, एनीमिया। और यदि हम कुछ हेरिडिटी डिजीज़ की बात करें, नॉर्मल डिजीज़ की बात करें, तो बहुत सारे सिकल सेल एनीमिया ऑल्सो हेरिडिटरी डिजीज। दीज आर द डेफिशिएंसी बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मलिटी ऑफ जब NADPH इम्पेयर हो जाएगा बनना, जिस वजह से ये डेफिशिएंसी आएगी। एंड अदर दिस डेफिशिएंसी इज मैनिफेस्टेड का मतलब टू शो समथिंग और टू बी शोन क्लियरली, स्पष्ट रूप से दिखाई देना। अब ये कब दिखाई देगी, ऐसे कि डिफिशिएंसी हुई, एनीमिया हुआ, तो जब कुछ ड्रग्स के हम लोग कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन किसी को मलेरिया हो तो वो एंटी मलेरियल ड्रग लेगा, तब ये एकदम से क्लियरली दिखाई देगी। प्रीमाक्विन लेगा, एंटी मलेरिया ड्रग का एग्जाम्पल है। एक फेवाबीम्स लेगा जिसको हम फेविज्म बोलते हैं, यदि प्रोसेस कंडीशंस है तो उसको फेविज्म बोलते हैं। क्या होता है फेविज्म, फेविज्म इज द कंडीशन कॉजिंग रेड ब्लड सेल्स टू ब्रेक डाउन इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन। और ये फेवाबीन्स क्या है, फेवाबीन्स एक नॉर्मली अपने जो बीन्स होते हैं वैसे ही है, ठीक है, एक ब्रॉड बीन्स होते हैं, जैसे फलियां होती हैं तो उनके बीच में जो बीन्स निकलते हैं इसकी तरह से ही होते हैं ये बीन्स। और नॉर्मली फेवा बीन्स हम लोग अपने हाई फाइबर में होता है, हम लोग लेते हैं एज ए रो और कुक में। बट ये बैड कब है, वाई दे आर बैड फॉर यू और आवर बॉडी, then especially during the when fava beans can cause the hemolytic anemia। कब, जब अपने ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी हो जाएगी तब एबनॉर्मली ब्रेक डाउन होने लग जाएगा आरबीसीज का, तो क्या हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। दैट्स वाई it is the manifesting in this way। glucose 6 phosphate dehydrogenase result in the hemolytic anemia, neonatal jaundice, ये सब चीज़ों में भी आपका HMP शंट पाथवे की डेफिशिएंसी दिखाई देती है, डेफिशिएंसी होती है। ये नियोनेटल क्या होता है जॉन्डिस, इट इज़ अ येलोइश कलरेशन इन विच वाइट पार्ट ऑफ द आई के जो वाइट पार्ट है वो येलोइश होने लग जाएगी, डिसकलर चेंज हो जाएगा। स्किन ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी ड्यू टू द हाई बिलीरुबिन लेवल की वजह से इन स्किन भी, जो न्यू बेबी होते हैं, स्मॉल न्यूनेंट्स होते हैं, स्मॉल जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, इनमें भी जॉन्डिस हो जाता है। यस, इंक्लूड द एक्सेस स्लीपीनेस, और वो क्या होगा फिर, एक्सेस स्लीपीनेस होगी, पुअर फीडिंग और मोर कॉम्प्लिकेशन। डेंजर के कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा, सीजर्स, जो कहते हैं दौरे आना, मिर्गी, ऐसे भी कुछ एरर, ऐसे भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं न्यूनोटल जॉन्डिस में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रेट डेफिशिएंसी इज द एक्स लिंक रेसेसिव हेरिडिटी डिजीज। क्या चीज़ है ये एक्स लिंक रेसेसिव हेरिडिटी डिजीज, एक्स लिंक हेरिडिटी डिजीज क्या है,
इट इज़ इंक्लूड रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आ जाता है इसके अंदर, और हीमोफीलिया हो जाता है। यस, हीमोफीलिया की हम बात करें तो हीमोफीलिया क्या है, आपके जो रेड ब्लड सेल्स है वो क्लोट नहीं हो पाएंगे प्रॉपर, तो ब्लड लॉस हो जाएगा। यस, दिस इज हीमो। अब इसके अंदर रेड ग्रीन कलर का ब्लाइंडनेस आ जाएगा, मतलब जो आईज है ना वो क्लियर नहीं हो जाएगी, मतलब इट इज़ नॉट एबल टू सी इन द नॉर्मल स्टेट। शेड से उनको इजीली पहचान नहीं पाएंगे, डिसइंटिग्यूज हो जाएगा। यस, विच इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इस की डेफिशिएंसी की वजह, कौन सा एंजाइम, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रेट विच इज़ रिक्वायर इन द आरबीसी मेटाबॉलिज्म। और ये हमें और किस लिए इम्पॉर्टेंट है, आरबीसी मेटाबॉलिज्म के लिए। यस, दीज आर द मैनी कॉम्प्लिकेशंस, आई एंकल्स वगैरह में जो यूरिनेशन नहीं होगा प्रॉपर, किडनी फेल हो जाएगी, इस डेफिशिएंसी की वजह किडनी फेल हो जाएगी। तो किडनी फेल से क्या होगा आपको, रिड्यूस अमाउंट ऑफ यूरिन, जब अमाउंट ऑफ यूरिन आउट ऑफ यूरिनेशन के थ्रू नहीं जा पाएगा तो स्वेलिंग इन योर लेग्स, एंकल्स, फीट बिकॉज ऑफ रिटेंशन ऑफ फ्लूइड कॉज बाय द फेलियर ऑफ द किडनी। जब किडनी से क्या करें, एलिमिनेट वाटर कर रहे हैं वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, पर यदि यूरिनेशन नहीं हो रहा, किडनी फेल हो गई, तो स्वेलिंग ऑफ द आईज, बॉडी, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाएगी, और न्यूनेटल बेबी में जॉन्डिस हो ही रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें होगी। हैंड बॉडीज़ क्या है, ये भी डेफिशिएंसी की वजह से। हैंड बॉडीज़ की बात करें तो दिस इज द इंक्लूजन विच इज रेड ब्लड सेल्स आर कंपोज टू डी नेचर्स हीमोग्लोबिन, अपना नेचर ही चेंज कर देते। कैसे, दे आर नॉट विजिबल विद द रूटीन ब्लड स्टेनिंग। आप इनको ये अलग ही कलर की जैसे हो गई, तो रेड कलर नॉर्मल जो स्टेनिंग होता है ब्लड का उसमें नहीं दिखाई देगी, जो नॉर्मल स्टेनिंग टेक्निक है उसमें विजिबल ही नहीं होगी। इसके लिए क्या होगा, कुछ सुप्रावाइटल स्टेनिंग करनी पड़ेगी। दैट्स वाई हैंड्स बॉडीज टाइप में भी कुछ डिजीज कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। यस, यदि बात करें कि एबनॉर्मलिटी ऑफ द HMP पाथवे की, जब ये सब सारी इसके अंदर पढ़ना है, कौन सा, फर्स्ट वन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी, सेकंड वन वर्निको कॉर्सकॉफ सिंड्रोम, थर्ड इज डेफिशिएंसी ऑफ ट्रांस एल्डोलेज। यस, यदि हम बात करें वर्निके कॉर्सकॉफ सिंड्रोम की, तो क्या चीज़ है ये, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। क्या चीज़ होता है ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, इट इज कॉज बाय द अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट। ठीक है, जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होगा। कैसे होगा, जेनेटिक कंडीशंस होनी चाहिए, जो वन वेरिएंट इज प्रेजेंट द बोथ सेल बोथ जेनेटिक्स में इस गिवन जीन के अंदर, तो ये पास नहीं हो पाएगा पेरेंट टू चाइल्ड में, मतलब स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म हो जाएंगे वेरिएंट्स, जो वेरिएंट्स होते हैं। दिस इज द ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। ये कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, क्योंकि ट्रांसकीटोलेज जो नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे के अंदर एक ट्रांसकीटोलेट एंजाइम वर्क कर रहा था, इसके डिफेक्ट की वजह से ये वर्निके कॉर्सकॉफ सिंड्रोम की डिजीज अकर होगी। इट्स एफिनिटी टू टीपीपी। टीपीपी क्या है, थायमिन डेफिशिएंसी, और ये क्या करता है, जो टीपीपी है थायमिन पायरोफॉस्फेट है, उसकी भी डेफिशिएंसी को कम कर देगा। सिम्टम्स क्या है इसके, मेंटल डिसऑर्डर, मतलब मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, सीवियर मेमोरी लॉस भी हो जाएगा, और पार्शियल पैरालिसिस भी हो जाएगा। इस कुछ कुछ पार्ट में पैरालिसिस हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ ट्रांसकीटोलेज हम डिस्कस करते हैं सेकंड नंबर में। थर्ड वन इज ट्रांस एल्डोलेज, यदि कीटोलेज की डेफिशिएंसी होगी तो मेंटल डिसऑर्डर्स वो सब डिजीज होंगी। यदि ट्रांस एल्डोलेज नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे के अंदर जो एंजाइम काम आ रहा था ट्रांस एल्डोलेज, और एक कीटोलेज, ट्रांस एल्डोलेज की वजह से लीवर सिरोसिस हो जाएगा। यस, व्हाट इज द लीवर सिरोसिस, लीवर डैमेज, यस, हिपेटाइटिस। और ये किस वजह से होता है, जब ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं। और मेल इनफर्टिलिटी, ये सबको पता ही है, मेल इनफर्टिलिटी भी हो जाएगी यदि डेफिशिएंसी ऑफ एल्डोलेज हुआ तो। Yes, if you have any doubt, any query, please comment in the comment box. Thank you so much. Please, if you like, please share your friends and comment and subscribe for my new video. Thank you.